Good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 41, and in this lecture, I am going to cover some topics of theory, that is treatment of partners loan account and treatment of goodwill, and two numericals will be solved here, question number 9 and question number 10. I hope you all understand the previous numerical which I have discussed in lecture number 40. Now continuing to the chapter dissolution of partnership firm, I am explaining you the treatment of loan account, how we are treating the loan account in partnership firm at the time of dissolution. See, partners loan account beta. If any partner is given loan to the firm, then partners loan account will be prepared separately. I told you in today's Zoom class also, whenever we are preparing any partner's loan account, then whenever any partner is given loan to the firm, that loan amount will not be shown in realization account. For that we have to prepare a separate loan account, that is known as partner's loan account. Partners loan account is prepared before capital account. Partners loan account just after realization account we make partners loan account. It is prepared before partners capital account at the time of dissolution. Capitals are paid off only if any balance is left after payment of partners loan account. Capital is because capital is only paid off if any balance is left after the payment of partners loan account. Following entry is passed for the payment of partners loan account debit to cash or bank account. एम आई क्लियर बेटा? पार्टनर्स का जो लोन, अगर कोई भी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो लोन की अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन नहीं होती है, बल्कि पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए हम सेपरेट कॉलम बनाते हैं और सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करते हैं बाय बैंक और बाय कैश, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है कैश की, अगर कोई बैलेंस बचता है तब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का पेमेंट होता है. दैट्स वाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बाद में बनता है. एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट जस्ट आफ्टर रियलाइजेशन वी प्रिपेयर partners loan account, and the entry for payment of partners loan account is partners loan account debit to cash bank account. Now see beta, next topic, that is partners of payment of partners loan. How we pay partners loan? Partners loan is to be paid after payment of outside liability but before payment of capitals of the partner. ये अभी मैंने आपको बताया था बेटा, पार्टनर्स लोन का पेमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटसाइड लाइबिलिटी जो भी है उसका पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होता है, लेकिन उसका पेमेंट बिफोर द कैपिटल अकाउंट होता है, बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, उससे पहले होता है. हावेवर इफ द कैपिटल अमाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम होम लोन हैज़ बीन टेकन बाय द फर्म shows a debit balance after all adjustment, then his own account will be transferred to the credit of his capital account to the extent of debit balance of कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स ने जो भी लोन दे रखा है फर्म को, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस हो कर रहा है तो पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट है उसको कैश या बैंक से पे ना करके उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड मेंशन कर देते हैं अप टू द अमाउंट जितना की पेमेंट पार्टनर को करना है. इज इट क्लियर बेटा? तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट का पेमेंट या तो बैंक या कैश के थ्रू होता है, लेकिन अगर पार्टनर के लोन अकाउंट का पेमेंट कैश या बैंक के थ्रू हो रहा है, फर्म दे रही है पार्टनर को, और उसके अलावा पार्टनर के पास कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो लोन का एडजस्टमेंट वो अपने डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल के साथ भी कर सकता है. नाउ सी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर फर्म, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, then it is credited it is treated like any other asset and is transferred to the realization account at the value given in balance sheet. Goodwill of the firm जो होती है, because it is the time of dissolution of partnership firm, तो जो भी गुडविल होती है फर्म की उसको हम आउटसाइड एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, और जो भी वॉट एवर वैल्यू इज़ गिवन इन गुडविल की वैल्यू जो भी गिवन होती है बैलेंस शीट में, उसको हम अदर एसेट की तरह ट्रीट करके ट्रांसफ़र कर देते रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके बाद अकाउंट एट द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट, जो भी वैल्यू गिवन होती है बैलेंस शीट में वो अमाउंट टोटल जो है शो हो जाती है ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और इसकी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. व्हेन सम अमाउंट इज़ रियलाइज्ड फॉर गुडविल, अगर गुडविल का कुछ रियलाइजेशन वैल्यू आती है, यानी गुडविल की कुछ रिलीज वैल्यू है, दैट इज़ नोन एज सेल आउट वैल्यू, तो उसकी एंट्री हो जाती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इट मीन्स जो गुडविल बुक वैल्यू में गिवन है इन द बैलेंस शीट उसको डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शो करोगे, और क्रेडिट साइड में उसका पेमेंट कर दोगे एज कैश, उसको रिलीज कर दोगे एज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इज इट क्लियर? अगर कोई उसकी अमाउंट रिलीज हो रही है तो उसको हम बाई साइड भी शो कर देंगे. देन
थर्ड इज़ इफ़ गुडविल इज़ टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर। अगर गुडविल का पेमेंट कोई भी पार्टनर कर रहा है तो इंस्टीड ऑफ कैश और बैंक अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज़ इट क्लियर बेटा? तो 3 एंट्रीज़ हैं गुडविल की। गुडविल को हम अदर एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म है तो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर उसको रिलीज हो रही है या सेल ऑफ हो रही है तो जो भी रिलीज अमाउंट होगी उसकी इट विल बी शोन ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। प्लस अगर उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है गुडविल को तो इट विल बी शोन बाय द नेम ऑफ द पार्टनर ऑन द बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the following was the balance sheet of X, Y and Z as at 28 to 2017. On the liability side, creditors given at 30,000, bills payable 10,000, G's loan account 18,000, Y's loan account 20,000, workman compensation reserve 33,000, capital XY 75,000 and 85,000, 1,60,000 total capital है। on the asset side, bank 32,000, debtors 48,000, stock 19,000, furniture 43,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000 और जेड की कैपिटल का डेबिट बैलेंस गिवन है दैट इज़ 20,000। ठीक है, तो टोटल इज़ 2,71,000। नाउ सी द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डेटर्स रियलाइज 29,000 एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डेटर्स रियलाइज्ड हुए हैं, जब भी उसके आगे किसी कुछ मेंशन नहीं होता तो इट मीन्स इट इज़ रियलाइज्ड इन कैश और बैंक, एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट 10% डिस्काउंट। इट मीन्स जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की अमाउंट है 30,000 का 10% डिस्काउंट, 3,000 माइनस हो जाएगा, 27,000 से क्रेडिटर्स की अमाउंट शोन होगी। बिल्स पेबल 10,000, उसका 10% माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 1,000, 9,000 का बिल्स पेबल का पेमेंट होगा। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 17,000। स्टॉक को एक्स ने रिलीज़ करा है तो बाय साइड में जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड में मेंशन कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर बाय 17,000। फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के फॉर रुपीज़ 20,000। अब आप पहले तो ये चेक करिए कि के इज़ द पार्टनर ऑफ द फर्म। क्या के पार्टनर है फर्म का? के पार्टनर नहीं है। एक्स वाई जेड इज़ द पार्टनर आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इट मीन्स के आपका आउटसाइडर है, तो के के थ्रू जो भी पेमेंट हमें मिला है इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू केस कैपिटल अकाउंट, बल्कि हम उसको कैश और बैंक अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि के एक आउटसाइडर है, उसने परचेस करा हमारी एसेट को, तो जो भी पेमेंट देगा वो कैश और बैंक के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर 2,98,000, ये भी कैश बैंक में जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 2,98,000। जीज लोन अकाउंट वॉज पेड बाय अ चेक ऑफ सेम अमाउंट। जी के लोन का अकाउंट, जी भी आपका थर्ड पार्टी है क्योंकि एक्स वाई जेड आर द ओनर्स और द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो जी आपका आउटसाइडर हो गया, तो जी का लोन भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसको सेम अमाउंट में पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो बाई साइड में आ जाएगा जीज लोन अकाउंट और 18,000 और टू साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट जीज लोन 18,000। देन नेक्स्ट देखिए आपका कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज़ 15,000। कंपनसेशन दिया वर्कमैन को 15,000 का भी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई भी क्लेम नहीं गिवन होता है तो होल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट इफ़ एनी टाइप ऑफ क्लेम इज़ गिवन तो जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है दैट इज़ 33,000, उसमें से क्लेम को माइनस कर देंगे, 15,000 रिमेनिंग इज़ 18,000। 18,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और जो 15,000 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसको इट विल बी शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, बाई साइड में मेंशन कर दोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 और टू साइड में भी आ जाएगा टू कैश अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। इज इट क्लियर? वो एक आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट हो जाएगा जो अमाउंट क्लेम की तरह है, और जो रिमेनिंग बचेगा रिजर्व में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है ना। सीधा सोल्यूशन बेटा, सी सोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने अभी आपको बताया है कि ऑल द एसेट्स ऑन द बुक वैल्यू एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1, all the assets on their book value will be shown on the debit side, to debtors account 48,000, to stock account 19,000, to furniture account 43,000, to land and building account 1,09,000। ये वो है जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है। सीधा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि देखिए क्वेश्चन में ये अमाउंट इसकी गिवन है, तो ये एज इट इज़ जितनी भी लाइबिलिटी जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट डेटर
स्टॉक, डेटर्स हैं एक्सेप्ट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये चारों के चारे अमाउंट 48,000, 19,000, 43,000 एंड 1,09,000 सेम अमाउंट शोन हो जाएगी ऑन द बुक वैल्यू इन द रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू में शोन हो गई। देखिए आपके अमाउंट, टू डेटर्स 48,000, टू स्टॉक अकाउंट 19,000, टू फर्नीचर अकाउंट 43,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,09,000। देन बाई साइड में जो लाइबिलिटीज़ गिवन है इन द बैलेंस शीट, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ बाय क्रेडिटर्स 30,000, बाय बिल्स पेबल 10,000, बाय वर्कमैन कंपनसेशन, मैंने अभी बताया था आपको उसका ट्रीटमेंट, जो भी क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 15,000, पहले हम उसको बाई साइड में मेंशन करेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, और फिर उसका पेमेंट हम टू साइड कर देंगे, टू बैंक अकाउंट करके हम उसका पेमेंट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पेड ऑफ 15,000। देन ऑन द बाई साइड बाय बैंक अकाउंट बाय एसेट्स रियलाइज, जो भी आपकी एसेट्स रियलाइज हो रही हैं उसकी वैल्यू को हम बाई साइड मेंशन कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज, और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो रहा है उसको हम टू साइड मेंशन कर देंगे, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, डेटर्स रियलाइज हुए थे, अभी मैंने आपको बताया था 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो 29,000 के डेटर्स रियलाइज हुए, लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000 की रिलीज हुई, फर्नीचर आपका 20,000 का रिलीज़ हुआ, इट विल बी शोन ऑन द बाई साइड, और 3,47,000 के एसेट रिलीज हो गए। और आपके डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ, क्रेडिटर्स 27,000, बिल्स पेबल 9,000, जीज लोन अकाउंट 18,000, तो ये टोटल आपका 54,000 की अमाउंट यहाँ पर शोन हो गई। देन बाय बैंक अकाउंट ये लाइबिलिटी पेड ऑफ हो गई 15,000 की। देन डेबिट टोटल करा हमने क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करा, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज़ 1,49,000। ये पार्टनर्स में डिवाइड हो गया इन द ओल्ड रेशियो 1:1, दैट इज़ 49,667, 49,667, 49,666, 1,49,000 इंटू 1/3, तीनों पार्टनर्स में वो इक्वली डिवाइड हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज़ वाइज लोन अकाउंट। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बाई साइड में आ गया बाय बैलेंस बॉट डाउन, उसका लोन 20,000 और टू में मेंशन हो गया टू बैंक अकाउंट 20,000 का लोन आपका पेड ऑफ हो गया। Then next is capital account of the partner. In capital account, so firstly by balance brought down, capital का पेमेंट आ गया 75,000, 85,000, ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल की वैल्यू गिवन है। देन बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वो रिजर्व है जो आपका 33,000 की अमाउंट थी, उसमें से 15,000 का क्लेम पे कर दिया था, तो 33,000 माइनस 15,000 जो 18,000 था वो पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया 1:1:1, तो इट इज़ 6,000, 6,000 एंड 6,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट वो प्रॉफिट आ गया पार्टनर का, तीनों पार्टनर का, उस प्रॉफिट को आपने मेंशन कर दिया इसमें। नाउ सी द नेक्स्ट दैट इज़ ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस बॉट डाउन, क्योंकि आपका जेड का कैपिटल बैलेंस डेबिट में गिवन था, डेबिट बैलेंस एसेट साइड में था, तो डेबिट बैलेंस है तो वो टू साइड आ गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये स्टॉक जो भी जिस पार्टनर ने ली है एसेट वो मेंशन हो जाएगा, स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स, तो एक्स के अकाउंट में 17,000 आ गया। देन बाई साइड का टोटल करा आपने, उसमें से टू का टोटल माइनस कर दिया टू साइड के टोटल को, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका, बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 1,13,667, एक्स का 1,40,667, वाई का और 35,666 जेड का आ गया। देन सी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट हम पे करते हैं टू द पार्टनर हम उसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले टू बैंक अकाउंट ये बैलेंस है, बैंक अकाउंट 32,000 का बैलेंस है, वो आ गया आपका टू बैलेंस बॉट डाउन 32,000। देन जो एसेट्स रियलाइज हुई थी इन रियलाइजेशन अकाउंट वो सारी कैश में जो रिलीज़ हुई हैं उसको हमने मेंशन कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रिलीज 3,47,000 ऑन द डेबिट साइड। ऑन क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ, जो भी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करा है हमने 54,000 वो मेंशन हो जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन का दैट इज़ 15,000 वो मेंशन होगा। देन बाय वाइज लोन अकाउंट 20,000 फॉर विच यू हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट लोन अकाउंट। एंड देन एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, वो कैपिटल की अमाउंट मेंशन हो जाएगी 3,79,000 इज़ द टोटल। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 अकाउंट मेंटेन हुए। नंबर 1 इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 इज़ वाइज लोन अकाउंट, नंबर 3 इज़ कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 4 इज़ बैंक अकाउंट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th बी। क्वेश्चंस को करके देखिएगा, वॉट एवर आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशंस यू आर ऑल्सो गेटिंग, उसको करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th बी, मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस
partners in a firm, Fancy Garment Exports, sharing profit and losses equally on 1st April 2018. The balance sheet of the firm was as follows. Sundry creditors 75,000. लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा? इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 25,000, 75,000, bills payable 30,000, Mrs. Chaudhary loan 15,000, reserve fund 24,000, and Mrs. Rita Chaudhary capital 90,000, Miss Shobha capital 30,000. On the asset side, bank 36,000, stock 75,000, book debt 66,000, less provision for doubtful debt 6,000. तो ये आपका 60,000 आ गया. प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000. मिसेस रीता चौधरी एंड मिस शोभना ये दो पार्टनर्स हैं. लाइबिलिटी साइड में जो मिस्टर चौधरी लोन गिवन है, इट इज़ द आउटसाइडर लोन. ये आउटसाइडर लोन है, इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे क्योंकि इसकी वाइफ हमारे फर्म में है और ये उसके हस्बैंड ने लोन दिया है फर्म को. Then now see the additional point. The firm was dissolved on the date given above. The following transaction took place. Number 1, Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mr. Chaudhary's loan and took over 50% of the stock at a discount of 20%. Mrs. Rita Chaudhary ने अब Mr. Chaudhary का लोन अंडरटुक कर लिया. It means the payment which is made to Mr. Chaudhary will be taken from Mrs. Chaudhary's account. It means जो लाइबिलिटी पेड होगी तो डेबिट साइड में आप मेंशन करेंगे to Mrs. Chaudhary's capital account और Mr. Chaudhary loan paid 15,000. इज इट क्लियर? देन उसके अलावा उसने 50% का स्टॉक टेक ओवर करा है, 20% डिस्काउंट. स्टॉक की टोटल वैल्यू है 75,000. 75,000 का 50% इज़ 37,500. उस 37,500 को 20% के डिस्काउंट पे उसने टेक ओवर कर लिया है. इट मीन्स बाय साइड में आप जब स्टॉक रिलीज़ करेंगे तो बाय एसेट रियलाइज या बाय मिसेस चौधरीज कैपिटल अकाउंट स्टॉक रियलाइज और 37,500 में से 20% के अमाउंट को माइनस कर देंगे. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. बुक डेब्ट्स रियलाइज 54,000. बुक डेब्ट जो है आपके 54,000 में रिलीज हुए हैं. तो बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. बुक डेब्ट 54,000 के हैं और जो बैलेंस है स्टॉक का उसको आपने 30% ऑन कॉस्ट पे सोल्ड ऑफ करा है. तो स्टॉक की जो वैल्यू थी 75,000 उसका हाफ 37,500 20% लेस पर मिसेस रीता ने ले लिया और जो रिमेनिंग बचा 37,500 उसको आपने सोल्ड ऑफ कर दिया 30% प्रॉफिट पे. इट मीन्स 37,500 का जब 30% प्रॉफिट निकालोगे उसमें ऐड करके आप उस स्टॉक को सोल्ड ऑफ कर रहे हैं और इट विल बी इन द बैंक और कैश अकाउंट. Then next point, sundry creditors were paid out at a discount of 10%. सन्ड्री क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पे ऑफ कर रहे हैं. तो जो भी क्रेडिटर्स की वैल्यू है दैट इज़ 75,000 उसका 10% 7,500 माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट में आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड हो जाएगा. बिल्स पेबल वर पेड इन फुल. इट मीन्स बिल्स पेबल जो 30,000 का है उसको पूरी अमाउंट में पेड ऑफ करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. देन प्लांट एंड मशीनरी रिलीज 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. तो बाय में आप मेंशन कर देंगे बाय कैश बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज या एसेट रिलीज 75,000 प्लांट एंड मशीनरी एंड 1,20,000 लैंड एंड बिल्डिंग. मिसेज रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000. मिसेज रीता चौधरी ने गुडविल भी ली है फर्म की 30,000 पे. तो ये बाई साइड में आ जाएगा बाय मिसेज रीता चौधरीज अकाउंट और दैट इज़ 30,000 गुडविल टेकन ओवर. Then realization expenses were 5,250. It is also paid in cash. तो टू साइड आ जाएगा आपका ये ऑन रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट 5,250 sorry. Now see realization account बेटा. मिसेस रीता और मिस शोभना ये दो पार्टनर्स हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1. सबसे पहले ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वी आर मेंटेनिंग ऑल द स्टॉक ऑल द एसेट्स जो आपकी बुक वैल्यू पे रिलीज़ हुई बुक वैल्यू पर गिवन है इन द बैलेंस शीट. टू स्टॉक 75,000, टू बुक डेब्ट 66,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 45,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000. टू मिसेज यहाँ तक तो आपकी कौन सी आ गई एसेट्स आ गई जो गिवन है ऑन द बुक वैल्यू. और बाई साइड में बुक डेब्ट्स पे प्रोविजन लगा है 6,000 वो आ जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके गिवन हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स को मेंशन कर देंगे ऑन द बाई साइड. बिल्स पेबल 30,000 बाय मिस्टर चौधरी लोन 15,000. इज इट क्लियर? ये तो सब आपने किससे नोट कर लिया? इट इज़ फ्रॉम द बैलेंस शीट. नाउ सी मिसेज रीता चौधरी के लिए क्या बोला गया था. मिसेज रीता चौधरी ने अपने हस्बैंड का लोन पे ऑफ करा है
तो टू मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट लोन टेकन ओवर 15,000 का लोन उसने टेक ओवर कर लिया उसका मिस्टर चौधरी का, एंड देन उसने 50% का स्टॉक टेक ओवर करा है। तो मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट 30,000 का और 50% स्टॉक भी उसने जो टेक ओवर करका है वो डिस्काउंट पे टेक ओवर करा हुआ है। तो आपने उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई 30,000 उसको शो कर दिया बाय मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट। देन टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ का पेड ऑफ कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस देन बुक वैल्यू है 67,500 का सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। बिल्स पेबल ऑन द सेम अमाउंट 30,000 का बिल्स पेबल आ गया, इट इज़ 97,500। बाय बैंक अकाउंट बुक डेट 54,000 रिलीज हुआ है, स्टॉक 48,750, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ये एसेट रियलाइज्ड है, 2,97,500 की एसेट रियलाइज हो गई। देन बाय मिसेस रीता चौधरी कैपिटल अकाउंट गुडविल टेकन ओवर है 30,000 का, इट इज़ मेंशन। देन डेट बाय साइड का आपने टोटल करा और डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करा तो प्रॉफिट इज़ देयर 1,32,000 का, वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया इन द ओल्ड रेशियो। नाउ सी कैपिटल अकाउंट ऑफ मिसेस रीता चौधरी। इन कैपिटल अकाउंट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस दोनों पार्टनर्स का गिवन है 90,000 30,000। देन बाय रिजर्व अकाउंट आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल अमाउंट में दोनों पार्टनर्स में 12,000। देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस चौधरीज लोन टेकन ओवर। अगर कोई भी लाइबिलिटी कोई भी पार्टनर पेड ऑफ करता है तो वो बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन वो कैपिटल अकाउंट आती है, और अगर कोई एसेट टेकन ओवर करता है तो वो टू साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगी। तो सी मिसेस रीता चौधरी ने मिस्टर चौधरी का लोन पे करा था तो बाई साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिस्टर चौधरी लोन टेकन ओवर 15,000, एंड टू साइड में मेंशन कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 50% स्टॉक टेकन ओवर दैट इज़ 30,000। देन टू रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल टेकन ओवर, वो भी आपकी एसेट ली थी रीता चौधरी ने मिसेस रीता चौधरी ने, तो गुडविल टेकन ओवर 30,000 यहाँ मेंशन हो गया। देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट या प्रॉफिट हो गया फर्म का, वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया तो 66,000 पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। जब आपने टोटल करके उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल टेकन ओवर, और ये आपकी जो वैल्यू माइनस होकर जो फाइनल पेमेंट इज़ 1,23,000 एंड 1,08,000। इज़ इट क्लियर बेटा? नाउ सी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ हैं 97,500 की, बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 55,250, बाय मिसेस रीता चौधरीज कैपिटल अकाउंट बाय मिस शोभना कैपिटल अकाउंट 1,08,000, ये आपका पेमेंट हो गया। और देन टू डेबिट साइड में टू बैलेंस बॉट डाउन, ये ओल्ड बैलेंस है जो कैपिटल उसमें गिवन है बैलेंस शीट में 36,000, एंड देन टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज 2,97,750। इन दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, अगर नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। बेटा डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, उसको करके देखो, ये टोटल कर लेना कैपिटल अकाउंट का और उसको माइनस करके यू विल गेट दैट अमाउंट, और करके देखिए इसको। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है देन प्लीज़ आस्क, और तभी आप इसको कर सकते हैं। डू इट अगेन एंड अगेन, इसका आपको एक पूरा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप इसको सॉल्व करिए। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, डू दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी।